Viscosity. Most of the fluids are not ideal ones and offer some resistance to the motion. This resistance to fluid motion is like an internal friction, analog to friction when a solid moves on a surface. It is called viscosity. This force exists when there is a relative motion between layers of the liquid. Suppose we consider a fluid like oil enclosed between two glass plates as shown in the figure 10.14a. The bottom plate is fixed while the top plate is moved with a constant velocity v relative to the fixed plate. If oil is replaced by honey, a greater force is required to move the plate with the same velocity. Hence, we say that honey is more viscous than oil. The fluid in contact with the surface has the same velocity as that of surface. एक कोई भी सरफेस है उसके ऊपर हमने क्या किया, एक लिक्विड को फ्लो कराया जैसे इस तरह से दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो जो सरफेस के जस्ट ऊपर वाली लेयर है वो किस स्पीड से मूव करेगी, जिस स्पीड पे सरफेस है वो उसके साथ रुकी रह सकती है या बहुत कम स्पीड से फ्लो करेगी। वो जो ऊपर वाली लेयर्स है वो क्या करेंगी, फास्ट मूव करेंगी। The layer of the liquid in contact with the top surface move with the velocity v and the layer of the liquid in contact with the fixed surface is stationary. The velocities of layer increase uniformly from bottom to top layer. For any layer of liquid, its upper layer pull it forward while lower layer pull it backward. This result in a force between the layers. This type of flow is known as laminar flow. हमने स्टीडी फ्लो पढ़ा था और ये क्या है, लेमिना फ्लो। इसमें हमारे पास क्या होता है, फोर्स आता है लेयर्स के बीच में, अलग अलग स्पीड पे लेयर्स फ्लो कर रही है। जैसे बर्नौलीज पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ना, तो नॉन विस्कस था। बट यहाँ पे क्या है, जो लेयर्स हैं इन बिटवीन क्या है, फोर्स है, वो अलग स्पीड से मूव कर रही है। ये वाला हमारे पास क्या है, लेमिना फ्लो। द लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड ओवर वन अनदर एज द पेजेस ऑफ अ बुक डू व्हेन इट इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन अ टेबल एंड ऑरिजेंटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टॉप कॉर्नर। किस तरह से मूव करते हैं एनालॉगी देखो, हमने एक मोटी बुक को रख दिया टेबल पे और ऊपर से उसको पुश कर दिया, जैसे हम उसमें कर रहे थे शेयर स्ट्रेस के केस में कर रहे थे कुछ वैसा। तो क्या हो जाएगा, जैसे उसके पेजेस आगे आगे मूव कर जाएंगे ऊपर वाले, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगी ना वो, तो इसी तरह जो लेयर्स है ऊपर वाली वो आगे चली जाएंगी, नीचे वाली थोड़ी स्लो होंगी। When a fluid is flowing in a pipe or a tube, then velocity of the liquid layer along the axis of the tube is maximum and decreases gradually as we move toward the wall when it becomes zero. Figure 10.14b, the velocity of a cylindrical surface in a tube is constant. On account of this motion, a portion of liquid which at some instant has the shape ABCD take the shape of AEFD after short interval of time. A layer of liquid sandwiched between two parallel glass plates in which the lower plate is fixed and upper one is moving to the right with velocity in the figure A. And B is velocity distribution for viscous flow in a pipe. जैसे पाइप है वहाँ पे उसके एंड्स के पास में तो स्लो होगा और बीच वाला फास्ट मूव करेगा. During the time interval, the liquid has undergone a shear strain of delta x by L. Since the strain in a flowing fluid increases with time continuously, unlike a solid, here the stress is found experimentally to depend on rate of change of strain. Strain rate. Rate of change क्या होता है, मतलब उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ रहा है. स्ट्रेन क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स बाई एल, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, है ना. तो देखो द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रोनाउंस ईटा. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको क्या बोलते हैं, ईटा. ऐसे एन की शेप में बनाते हैं. फॉर अ फ्लूइड इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट. ठीक है, देखो आप जब मॉडुलस निकालते हैं उसमें क्या निकालते हैं आप, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन. बट इन दिस केस हम क्या लेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट. ठीक है, स्ट्रेन रेट क्या हो जाएगा, कितना स्ट्रेन पर यूनिट टाइम है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लेते हैं तो हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. तो ईटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ एल डिवाइड बाई वी ए, जहाँ पे एफ फोर्स है, एल उसकी ओरिजिनल लेंथ है जिसमें वो मूव कर रहा है, वी क्या है उसकी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ए उसका एरिया. ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पोइसल. इट्स अदर यूनिट आर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, पास्कल सेकेंड. द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी आर एम एल माइनस वन टी माइनस वन. ये कैलकुलेट करके देख लेंगे हम तो उसमें निकल आएगा. Generally, thin liquid like water, alcohol are less viscous than thick liquids like coal tar, blood, glycerine.
जो विस्कोसिटी है वो मतलब थिकनेस लगा लो, जो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना विस्कस होगा। जैसे कि पानी है, पानी की थिकनेस तो बहुत कम है, हनी है, हनी ज़्यादा थिकनेस है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जब वो मूव करेगा उसकी लेयर्स में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रेन रेट कम हो जाएगा उसका। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर सम कॉमन fluids are listed in table 10.2. We point out two facts about blood and water that you might find interesting. As table 10.2 indicates, blood is thicker, more viscous than water. Further, the relative velocity of blood remain constant between 0 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. The viscosity of liquid decreases with temperature while it increases in case of gas. जैसे जो लिक्विड है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी जो विस्कोसिटी है ना वो कम होती रहेगी, उसकी थिकनेस है वो कम होती रहेगी। समझने के लिए जैसे कि इट्स इजी ना कि गर्मियों में ब्लड फ्लो इजी होता है बट विंटर्स में वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में क्या हो जाता है उसका थिकनेस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सिर्फ ऐसे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, जबकि गैसेस के केस में उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गैसेस की विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। Now look at example. A metal block of area 0.10 meter square is connected to a 0.010 kg mass by a string that passes over an ideal pulley, consider massless and frictionless as shown in the figure 10.15. A liquid with the film thickness of 0.30 mm is placed between the block and the table. Okay. When released, the block moves to the right with a constant speed. Find the coefficient of viscosity of liquid. Coefficient of viscosity निकालना है। Coefficient of viscosity क्या होता है अपने पास, ईटा। ईटा की वैल्यू क्या आती है अपने पास, स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट होता है V बाई एल और स्ट्रेस होता है अपने पास F बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले देखो फोर्स कितना हो जाएगा, टेंशन के बराबर, वो कितनी हो जाएगी mg, यानी कि स्ट्रेस हो जाएगा mg बाई ए। मास कितना है अपने पास 0.010, मास है 0.010, जी की वैल्यू कंसीडर कर लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद अपने पास एरिया कितना है 0.10 मीटर स्क्वायर, तो निकाल दो एम जी बाई ए। एम जी बाई ए करेंगे तो अपने पास आ जाएगा शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन रेट निकालना है। स्ट्रेन रेट क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगा वी, तो ये आ जाएगा वी बाई एल। वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 0.085 और लेंथ कितनी है ये दी 0.30 mm, इसको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो तो यहाँ से स्ट्रेन रेट आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, स्ट्रेस को भी और स्ट्रेन को भी। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। द विस्कोसिटीज ऑफ सम फ्लूइड्स, वाटर, ब्लड, मशीन ऑयल, ग्लिसरीन, हनी, एयर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग विस्कोसिटी की वैल्यू दी हुई है। वाटर की 1 है, ब्लड 2.7 और मशीन ऑयल की ज़्यादा है, ग्लिसरीन की और भी ज़्यादा है, हनी की कम है कंपेरेटिवली, एयर की तो बहुत ही कम है। उसके बाद है स्टोक्स लॉ। Let's see what it say. When a body fall through a fluid, it drag the layer of the fluid in contact with it. जब भी एक लिक्विड के अंदर हम किसी भी बॉडी को डालते हैं तो वो क्या करेगा, लिक्विड किस में है, लेयर्स में है, वो उसकी लेयर्स को चीरता हुआ नीचे चला जाएगा, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। A relative motion between the different layer of the fluid is set and as a result the body experience a retarding force. जो लेयर्स है डिफरेंट लिक्विड की, उनका भी क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जैसे ही एक बॉडी उसके ऊपर फॉल करेगी तो उनके बीच में क्या है, उनकी वजह से उसका जो मोशन है फॉलिंग बॉडी का वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। किस वजह से, रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स की वजह से। फॉलिंग ऑफ अ रेन ड्रॉप and swinging of a pendulum bob are common example of such motion. It is seen that the viscous force is proportional to velocity of object and opposite to the direction of motion. The other quantity on which force F depend are viscosity eta of the fluid and radius a of the sphere. Sir George G. Stock, an English scientist, clearly the viscous drag force as F is equal to 6 pi neta AV। जो विस्कोसिटी ड्रैग फोर्स होता है, विस्कस ड्रैग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो विस्कोसिटी की वजह से है और एक उसके अंदर आने वाली बॉडी को ड्रैग कर रहा है, उसके मोशन को रोक रहा है, तो वो क्या जाएगा 6 पाई नीटा AV।
ठीक है, बस एक ये ध्यान रख लेना कहाँ पे भी हम एज ए वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे वी को हम एज अ विस्कोसिटी सॉरी वो वेलोसिटी में यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं और वेलोसिटी के लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ, वी शैल नॉट डिराइव स्टोक्स लॉ, दिस लॉ इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डिंग फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहाँ पे जो वी है वो क्या है, अपना वेलोसिटी है, ना कि वॉल्यूम वाला। We can study its consequence on an object falling through a viscous medium. We consider raindrop in air. It accelerates initially due to gravity. As the velocity increases, the retarding force also increases. Finally, when viscous force plus buoyant force become equal to the force due to gravity, the net force becomes zero and so does the acceleration. The sphere thus descends with the constant velocity. Thus, in equilibrium, the terminal velocity is given by 6 pi eta AV is equal to 4 pi by 3 ए क्यूब सिग्मा माइनस रो जी। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a² सिग्मा माइनस रो जी बाय 9 नीट। सो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनवर्सली ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। देखो इससे यहाँ पे ना इसको ड्राइव कैसे किया है, आपने दोनों फोर्स कंसीडर कर लिए। पहले तो जो वो आ रहा था उस पर विस्कस ड्रैग लग रहा है, वो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो अपना ड्रैग फोर्स है 6 पाई नीटा AV, ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी वाले फोर्स के। वो कितना होता है mg। लिक्विड के केस में आप इसको मास को कैसे कंसिडर करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ऐसे करके कंसिडर करते हैं। अब देखो अपन ने किसका केस लिया है, एक रेन ड्रॉप का। रेन ड्रॉप की शेप कैसे होती है, स्फेरिकल। तो उसके लिए वॉल्यूम कितनी आ जाएगी अपने पास, 4/3 पाई, रेडियस लिया है ए क्यूब। ठीक है, ये तो होगी उसकी अपने पास वॉल्यूम। अब डेंसिटी देखो किस डेंसिटी से आ रहा है, वो खुद की रो और एटमोस सराउंडिंग की कैसी है उसकी सिग्मा। इसकी वजह से उसमें कमी आ रही है ना, वो रुकेगा आगे जाके, और जी की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी अपने पास। तो देखो यही लिया है यहाँ पे इसने 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी की। 6 डिवाइड में चला जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा अपने पास 2/9 आर स्के ए स्केयर और साथ में रो माइनस सिग्मा इंटू में जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, इनिशियली एक्सेलरेट हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। फिर जब बायोन्स फोर्स प्लस जो ड्रैग है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, जी वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आने लग जाएगा, यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और फिर इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी टाइम के साथ। अगर हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल देखते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल 20 डिग्री सेल्सियस इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Compute the viscosity of oil at 20 degree Celsius. Density of oil is this. Density of copper is what? देखो बस सीधे सी बात है, आपको क्या निकालना है, विस्कोसिटी निकालनी है ऑयल की, यानी कि आपको निकालनी है ईटा की वैल्यू। फॉर्मूला लगा दो, 2/9 रेडियस का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। वैल्यू पुट कर दो, 2/9 रेडियस कितना दिया हुआ है आपको इसका, 2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर इंटू में 9.8, दोनों का डिफरेंस 7.4 और बाय में 6.5 इंटू 10⁻²। ये क्या आ जाएगा अपने पास, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। और इसको कैलकुलेट कर देंगे बस, फिर इसका आंसर आ जाएगा। ऑयल की डेंसिटी दी है 1.5 और कॉपर की दी है 8.9, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे रो माइनस सिग्मा करके, 8.9 माइनस 1.5 वो आ जाएगा अपने पास 7.4। ठीक है, नेक्स्ट देखो सरफेस टेंशन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, वाटर वेट्स यू एंड me but not ducks. Mercury does not wet glass but water stick to it. Oil rises up a cotton wick in spite of gravity. Soap and water rise up to the top of the leaves of the tree. Hair of a paintbrush do not cling together when dry and even when deep in the water, but form a fine tip when taken out of it. All these and many more such experiences are related with the free surface of the liquid.
As liquid has no definite shape but have a definite volume, they acquire a free surface when poured in a container. This surface possesses some additional energy. This phenomena is known as surface tension, and it is concerned with only liquid, as gases do not have free surface. Let's now understand the phenomena. Surface tension is only related to the liquid. Let's consider surface energy. A liquid stay together because of attraction between molecule. Consider a molecule well inside a liquid. The intermolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. This attraction results in a negative potential energy for the molecule, which depends on the number and the distribution of molecules around the chosen one. But the average potential energy of all the molecules is same. This is supported by the fact that to take a collision of such molecules and to disperse them far away from each other in order to evaporate or vaporize, the heat of evaporation required is quite large. For water, it is 40 kilojoule per mole. Let us consider a molecule near the surface. Only lower half of it is surrounded by a liquid molecule. There is some negative potential energy due to this, but obviously it is less than that of a molecule in bulk. Now that one fully inside, approximate it is half of the latter. Thus molecule on a liquid surface has some extra energy in comparison to the molecule in the interior. A liquid thus tends to have the least surface area which external conditions permit. Increasing surface area requires energy. Most surface phenomena can be understood in terms of this fact. What is the energy required for having molecule at the surface? As mentioned above, roughly it is half the energy required to remove the entirely from the liquid, half the heat of evaporation. Finally, what is a surface? Since the liquid consists of a molecule moving about, they cannot be a perfectly sharp surface. The density to the liquid molecule does rapidly to zero around z equal to 0 as we move along the direction indicated in a distance of the order of a few molecular size.